Again, we are in discussion with the chain Ingold Prelog rules for absolute configuration of the molecules. The molecule which we are discussing, they are the tetrahedral model, which we have discussed yet, or they may be the 2D model, just like Fisher projection, which we have to give the absolute configuration. For what purpose the absolute configurations are given? The absolute configurations, they are given for the telling optical rotation of the particular molecule, whether it is dextrorotatory or levorotatory. So R and S configurations, Rector and Snister, that we say, that are given to the molecule according to the atomic weightage of the particular group which is present there. Whenever we see a molecule, then we assign the priority to the different groups which are present on the molecule, and we see how the circle it is formed by joining 1, 2 and 3. सर्कुलर मैनर में इनको ज्वाइन करना है 1, 2, 3. 4 को आपने नहीं कंसीडर करना है वेर एवर इट इज प्रेजेंट. तो 1, 2, 3 को आपने इंक्लूड करके एक हाफ सर्कल या सर्कल जो भी बनता है वो ड्रॉ करना है, एंड सी वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन असाइन द RS configuration accordingly that. So see here the first example. In the first example here it is bromine that is present. This is the bromine. The number 1 is given to this. Then number 2 will be given to the chlorine according to the atomic weight. Number 3 will be given to the fluorine. Number 4 will be given to the hydrogen. This is a 3D model. So in 3D model, one condition is there when you are numbering the different substituent present on the carbon atom, then least priority group it should be away. Away का पता कैसे चलेगा? ये डैश लाइन जो बिल्कुल फेड लाइन जो है वही इंडिकेट करेगी कि ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है. जो सिंपल लाइंस होती हैं दैट आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, सॉलिड लाइन दैट इज अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड दिस लाइन फेड लाइन इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द स्क्रीन हेयर. तो इस तरह से जो वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो वो आपने अवे रखना है. फिर आपके पास 1, 2, 3 जो भी आता है उसको आपने एक सर्कल में जो वो वाइंड करने की कोशिश करनी है. सो दिस इज द सर्कल दैट इज वाइंडिंग फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3. So as it is clockwise, so we will say it is a R configuration. क्या बोलेंगे इसको? R configuration बोलेंगे. Let us discuss one more molecule here, but with some conditions. When first atom is same, जब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई उसमें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो वो ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूएंट क्या थे, डिफर कर रहे थे. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट कार्बन एटम जो मैच कर जाए कार्बन और कार्बन हो, तो हम नेक्स्ट जो उसमें एटम अटैच्ड होता है उसकी कंट्रीब्यूशन जो वो देखते हैं. जैसे ये नीचे एग्जांपल है, इसमें C यहां कार्बन आ रहा है और इस साइड OH है, यहां पर फिर कार्बन है. तो कार्बन और कार्बन फर्स्ट यहां पर मैच कर गए. तो उसके बाद आपने नेक्स्ट की प्रायोरिटी देखनी कि किसकी आएगी. यहां पर ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो है वो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा बजाय के हाइड्रोजन को. तो CH3 को प्रायोरिटी कम मिलेगी और COH को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी. अगर आप नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट एटम चेक करने पे ऑक्सीजन जो वो नंबर 1 हेयर OH, तो इसको नंबर 1 मिल गया. उसके बाद इनमें से किसी दो को नंबर 2 असाइन करना है आपने, लेकिन नंबर 2 इसको असाइन करेंगे क्योंकि यहां पर सेकंड एटम की प्रायोरिटी यहां पर कार्बन के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है. इसको नंबर 3 असाइन करेंगे. अगेन ज्वाइनिंग 1 and 2, 3 बाय हाफ सर्कल. सो जो भी बनता है आपसे, तो ये जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टस, और इट इज हैविंग द R configuration. How it is linked with the optical activity, that cannot be said yet, but it is very simple that whenever particular configuration is R or S, it means it is optically active. Then let us have the view of some another rules here. Whenever double bond is there, then each atom is supposed to be duplicated, and same is the case for the triple bond.
मीन्स कि डबल बॉन्ड आएगा तो हम उस एटम को मान लेंगे कि वो एक बार नहीं 2 बार गिना जा रहा है। कितनी बार काउंट हो रहा है? वो 2 टाइम्स जो वो काउंट हो रहा है। तो यहां पर देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O को मैंने कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और यहां पर दूसरी ऑक्सीजन जो वो काउंट कर ली है। चाहे वो कुछ भी लिखा है उसको, या उसकी बॉन्डिंग पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसका मुझे लेना देना नहीं है यहां पर। लेकिन मैंने ये देखना है कि डबल बॉन्ड से कितनी काउंटिंग आएगी। डबल बॉन्ड का मतलब है जो भी उसके साथ एटम अटैच्ड है वो डुप्लीकेट हो जाएगा या ट्रिप्लीकेट। अगर मान लो यहां पर साइनाइड आयन होता C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन होनी थी। कितनी होनी थी? 3। तो इस तरह से प्रेफरेंस देखने के लिए आपने ये भी देखना है कि कहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। Whenever you are dealing with the Fisher projection, then lowest priority group should be in the vertical position. जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में उसने 3D स्ट्रक्चर दी हो और 3D स्ट्रक्चर में आप लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को रोटेशन देके जो वो अबे पोजीशन पे ले जाएं और फिर उसकी नेमिंग करें। आप उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो आसानी से आप जो उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन में जब आपने नेमिंग करनी है तो उसके थोड़े से रूल जो वो डिफर करते हैं। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन याद आपको जो वो करना पड़ेंगे। तो जब भी डील कर रहे हैं आप फिशर प्रोजेक्शन में, तो जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। वर्टिकल पोजीशन का क्या मतलब है? यहां एक नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, सीधी स्ट्रक्चर। तो ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल पोजीशन में H यहां साफ नजर आ रहा है कि इसको लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो H की पोजीशन जो कहां वर्टिकल में है। तो जो भी आप इसको नंबर करोगे 1 2 3 अगेन वो सर्कल पुटअप करना, उसी तरीके से इसका नाम आपने दे देना है। तो ये H जो वो वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। ये नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है। एक ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें जो हाइड्रोजन कहां है? ऊपर वाली जगह है, तो भी चलेगा। नीचे वाली साइड में, यानी चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, लेकिन होना कहां चाहिए? वर्टिकल पोजीशन में। तो नंबरिंग करके जो वो आप उनको नेमिंग कर सकते हो। 1 इज दिस वन बिकॉज O विल गेट फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड इज दिस वन, रीजन बीइंग ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ 3 H हैं। लेकिन इस कार्बन के साथ एक और कार्बन है C2, तो CCH आ रहा है, उसमें CHH आ रहा है। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा बजाय के C एंड हाइड्रोजन। तो नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे ये है। अगेन प्लेसिंग द सर्कल हेयर, इट इज 1 to 2 to 3। तो ये आपके पास 1 2 3 क्या आएगा? ये दिस इज फ्रॉम 1 2 and 3। दिस इज ए R configuration because it is a clockwise। कैसे आ रहा है ये? clockwise। See here sidewise structure, here bromine is having more atomic weight, so it will get the first preference। Then nitrogen is having its atomic weight, so it will get the second number। ऐसे नहीं कि पूरा ग्रुप काउंट करना है। जो डायरेक्टली अटैच्ड है पहला एटम, उसको गिनना है आपने, दूसरे की बारी बाद में देखनी है। उसके बाद वैसे तो देखना हो तो यहां पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन 2 है तो 2 का मतलब क्या हो गया? 12 and 12 24। लेकिन फर्स्ट अटैचमेंट, पहली अटैचमेंट कार्बन की, यहां नाइट्रोजन, यहां ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज्यादा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। सो नाइट्रोजन को ये NH2 ग्रुप को सेकंड मिलेगा और इस C2H5 को ग्रुप को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। सो फ्रॉम 1 2 and 3, तो ये हाफ सर्कल इस तरीके से बन रहा है, 1 से 2 और 2 से 3। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस मीन्स इट इज ए S कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगी? ये S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये जो है 1 2 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और इस साइड कैसी आ रही है? ये क्लॉकवाइज आ रही है। सो वन इज R कॉन्फ़िगरेशन, अनदर इज द S कॉन्फ़िगरेशन। सी द नेक्स्ट वन। ये तो पीछे हमने अभी डिस्कस किया कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो वो उसकी पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है या वर्टिकल पोजीशन है। तो डिस्कशन में ये आ रहा है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल होनी चाहिए। वर्टिकल में चाहे वो टॉप पे हो चाहे नीचे हो, दोनों साइड जो हो वो चलेगा। लेकिन उसकी नेमिंग जो हो वो आपने 1 2 3 जो प्रायोरिटी जो ग्रुप्स को असाइन करनी है और उसके बेस पर उसकी नेमिंग जो है वो कर देनी है।
ऐसा भी हो सकता है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपके पास जो है वो वर्टिकल पोजीशन में ना हो, तो हम एक्सचेंज ऑफ ग्रुप करके उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला सकते हैं. व्हेन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इट शुड बी ब्राउट इन द वर्टिकल पोजीशन बाय एक्सचेंज ऑफ ग्रुप. ग्रुप्स को आपस में एक्सचेंज करके हम उसको जो कहां ला सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में ला सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी एक्सचेंज करनी है, एक्सचेंज इवन नंबर में होनी चाहिए. मतलब एक एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं आप या तो 2 एक्सचेंज कर सकते हैं या 4 एक्सचेंज कर सकते हैं. कितनी एक्सचेंजेस? आइदर 2 और 4. तो मिनिमम 2 की जरूरत पड़ेगी. 2 एक्सचेंजेस से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन जो है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ सकती है, वर्टिकल पोजीशन में आ सकता है. सो दिस इज ए एग्जाम्पल विच इज अदर देन द हाइड्रोजन. यहां देखते हैं कि किसको हमने प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है. तो पहले तो आपने देखना है कि फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट एटम, यहां फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन. इट मींस ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलेगा, सो 1 शुड बी गिवन टू द OH. उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट आता है 2 शुड बी गिवन टू द NH2 ग्रुप. उसके बाद बारी आती है इन दोनों की. इसमें भी कार्बन ज्वाइनिंग में है फर्स्ट, इसमें भी कार्बन ज्वाइनिंग में है. आगे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड O होगा. ये एसिडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O. तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की वजह से हो जाएंगी और एक ही है. इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें C ट्रिपल O 3 ऑक्सीजन आ रही हैं. बट अबाउट दिस वन, ये बेंजीन है C6H5. C6H5 में कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड होता है. इसका मतलब इसमें जो है वो एक तरफ 2 कार्बन लगेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा. एक परे साइड कार्बन होगा तो इसके साथ 3 कार्बन लिंक्ड हैं. तो इसमें एक कार्बन के साथ 3 कार्बन, इसमें एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन. तो 3 ऑक्सीजन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. सो ऑब्वियसली इट विल गेट द नंबर 3 एंड दैट इज द नंबर 4. तो जरूरी नहीं है कि आपके पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो वो हाइड्रोजन हो. इसमें अदर देन हाइड्रोजन आया. अब इसमें आपने जो है वो क्या है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है, 4th वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे. आपने क्या करना है, इसको वर्टिकल पोजीशन पे लाना है. तो यहां मैंने एक्सचेंज की है ग्रुप्स की. C6H5 को COH के साथ एक्सचेंज कर दिया, ये सिंगल एक्सचेंज हो गई. और OH को मैंने NH2 के साथ कर दिया, तो ये दूसरी एक्सचेंज हो गई. क्योंकि आपको 2 एक्सचेंज करनी ही पड़ेंगी. एक्सचेंज जो है वो किस नंबर में होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए. सो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. देखो C6H5 की पोजीशन पे आ गया, COH C6H5 की पोजीशन पे आ गया. यहां OH NH2 की जगह आ गया, NH2 OH की जगह आ गया. अब आपने इसको नंबर असाइन करना है. नंबर 1 इज दिस वन, नंबर 2 इज दिस वन, नंबर 3 इज दिस वन एंड नंबर 4 इज दिस वन. अगर आप अब इसको जो है वो एनसर्कल करते हो 1 2 2 3, तो क्या आएगा, it is from 1 2 to 3. It is anti-clockwise, so this is a S configuration. कैसी आ रही है ये, S configuration आ रही है. यहां पर मैंने एक्सचेंज की इन 2 ग्रुप्स की, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. ऐसा नहीं है, आप किन्हीं भी ग्रुप्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे ये नीचे देखो जरा, यहां पर मैंने ये C6H5 को पहले COH के साथ एक्सचेंज किया. उसके बाद जब ये एक्सचेंज हो गई तो ऊपर OH और COH को फिर मैंने OH और सेकंड ये एक्सचेंज मैंने ये की. तो पहली एक्सचेंज से आपके पास COH इधर चला जाएगा और C6H5 इधर आ जाएगा. लेकिन जो सेकंड एक्सचेंज होगी उससे C6H5 टॉप पे चला जाएगा और OH जो है वो डाउन आ जाएगा. तो इन 2 एक्सचेंजेस से जो है वो आपके पास ये स्ट्रक्चर बने. अब इसमें फिर नंबरिंग करते हो आप, तो नंबर 1 OH को, नंबर 2 NH2 को, नंबर 3 इसको. अगर इनको फिर आप मिलाते हो तो इट इज 1 2 2 3. इट मींस इट इज ए अगेन S कॉन्फ़िगरेशन. तो आप किसी भी तरह से उसको जो है वो एक्सचेंज कर लो, प्रोवाइडेड एक्सचेंज आपकी जो है वो कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर में. अगर इवन नंबर में एक्सचेंज करते हो तो नेम जो है उस कंपाउंड का नहीं बदलेगा और आसानी से आप उसको जो है वो R या S कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असाइन कर सकते हैं.
So it should be kept in mind that all exchanges, this should be in even number, not in the odd number. Let us see some more rules regarding this. फिशर प्रोजेक्शन में जो है वो जरूरी नहीं है कि आपने एक्सचेंज करनी है. यू कैन गिव कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन आल्सो. तो ये एग्जाम्पल है. पहले यहां पर जो पीछे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, OH, COH, NH2, C6H5. मैंने एक एक्सिस चूज कर ली क्योंकि मुझे C6H5 डाउन चाहिए. तो मैंने ये लाइन जो दिखाई दे रही है ये एक्सिस चूज कर ली और ये 3 ग्रुप है. इन 3 ग्रुप को मैंने रोटेट करना है. तो NH2 C6H5 की जगह, C6H5 COH की जगह और COH NH2 की जगह. तो आपके पास ये बन जाती है स्ट्रक्चर. OH अब NH2 इस पोजीशन से यहां पहुंच गया, C6H5 डाउन पहुंच गया और COOH जो वो NH2 पोजीशन पे पहुंच गया. गिव द नंबर्स. दैट इज नंबर 1, दैट इज नंबर 2 एंड दैट इज नंबर 3. 4 को आपने नहीं लेना है. तो 1 से 2, 2 से 3 अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, सो 1 2 2 2 2 3 अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो इस सर्कल के ड्रॉ करने से आपके पास एंटी क्लॉक डायरेक्शन जो है वो आती है. तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई? एस कॉन्फ़िगरेशन. तो पीछे जितने भी ऑपरेशंस हमने जो वो फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर किए, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ द ग्रुप्स था, चाहे वो फ्री रोटेशन था, वो पॉसिबल है फिशर प्रोजेक्शन में, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का नाम एस से एस में ही रहा. किस में रहा? ये एस में ही रहा. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से नेमिंग इसकी की जा सकती है. इस स्ट्रक्चर को आप रिकन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? 3 डायमेंशन में भी. और फिर आप लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जो अवे करके भी नेमिंग कर सकते हैं. पर बेहतर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू फिशर प्रोजेक्शन एंड देन सी वेयर इज द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. अगर वो वर्टिकल पोजीशन में है, चुपचाप उसकी नेमिंग कर दीजिए. इफ इट इज नॉट इन द वर्टिकल पोजीशन, you can do the exchanges of the groups, but they all exchanges they should be in the even number. That should be kept in the mind. You can also grip the free rotation, लेकिन free rotation का अगर आपको पता नहीं लगता है तो आप exchange of group भी कर सकते हैं. एक बहुत सिंपल सा आइडिया भी है कि आपके पास जो भी कंपाउंड दिया उसकी सीधी नेमिंग कर दो. क्या कर दो? सीधी नेमिंग. अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हॉरिजेंटल पोजीशन पे तो उसका नाम आपने बदल देना है. एस आता है तो एस का आर, आर आता है तो आर का एस. और अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में है तो जो नाम आता है वही नाम आपने उसका लिख देना है. तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है. कौन सा? लास्ट वाला. कि जैसा भी फिशर प्रोजेक्शन में उसने मॉलिक्यूल दे रखा है, टेक इट एंड गिव द नंबर्स एंड गिव द नेम. उसके बाद ये देख लो कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो एस को बदल करके रिवर्ट करके आर कर देना है, या आर आता है तो आर को रिवर्ट करके एस कर देना है. और अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो वो वर्टिकल पोजीशन में है तो जो नेम आता है वही नेम उसको आपने जो है वो असाइन कर देना है. सो ओके, नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन.